So yeah, we will start exactly 4. So waiting one or two more peoples to join in so that we can start the session. Okay, yeah, let's start. Hello everyone. Welcome back to another one of our weekly career classes. My name is Anushri Rastogi and I will be your host for today's live session. Thank you all for joining in. We are thrilled to have you all here today. So for today's weekly career class, we will be talking about how you can manage your finances. I know it's a very broad topic, so we will be covering like some basic tips and strategies so that you can manage your finances, your pocket money you get being as a student, how you can like create a budget and how you can manage your income, expenses and debt. So yeah, so if you are a student and want to know how to create a budget that works for you as a student, or maybe how to manage income, expenses and debt as a student, or maybe how to build up healthy financial habits as a student, then keep watching this live. And to answer all these questions, we have Mr. Yatin Girdar. Yatin is a professional CA with a demonstrated history in financial analysis and M&A, which means strategy and transactions. He has also done a BCom honors degree from Delhi University. He is currently working with iDreamCareer as a financial controller. Welcome and thank you, Yatin, for joining us today. Yeah, thanks, Anushri. So, thank you for having me and thank you for the introduction. So, in terms of, let me just give a little bit of brief about myself. Yatin Girdar, I'm a chartered accountant with over 8 years of experience working in audit, finance, merger acquisitions, and currently working with iDreamCareer. So, today's topic will mostly be around financial strategies for students because right now जब तक आपको बेसिक फाइनेंसिंग बेसिक अपने छोटे एक्सपेंसेस मैनेज करने नहीं आएंगे तब तक आप बड़े एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पाओगे Yeah. सो दिस इज व्हाट वी आर expected to discuss today. So I think we can start. Anushri, Yeah. if yeah. Okay. Before we start, if you have any questions to ask to students and from Yatin, so please don't hesitate to use the live chat to ask or share your thoughts. We will be taking up your questions towards the end of the session. Okay, so let's go ahead. Yatin, you can take over now. Thanks, Anushri. Okay, so first of all, the basic thing that people don't do or students don't actually think is कि बचाना ज्यादा जरूरी है स्पेंड करने से ज्यादा जरूरी है बचाना आपके पास 100 रुपीज है आप हमेशा ट्राई कीजिए कि 20 रुपीज आप सेव कीजिए उसके बाद 80 में से आप स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए बट जब भी वेन एवर अ स्टूडेंट और वेन एवर एनी इंडिविजुअल जिसके पास भी पैसा होता है वो हमेशा ये लेके चलता है कि मेरे पास 100 रुपीज है आप उस 100 को हमेशा 80 रुपीज लेके चलिए स्पेंड करने के लिए बिकॉज अगर वो आप नहीं करेंगे तो देन वो पूरा 100 रुपीज ही स्पेंड हो जाएगा तो दिस इज द बेसिक रूल विच इज सेव बिफोर यू स्पेंड 50 30 20 रूल 50 रुपीज आप स्पेंड कीजिए 100 में से अपनी नीड्स पे यूटिलिटीज ग्रोसरीज रेंट वगैरह पे 30% अपने वांट्स पे आपको बाहर घूमने जाना है फ्रेंड्स के साथ लेजर एक्टिविटीज करनी है खाना खाने जाना है उसके लिए एंड 20 हमेशा सेव कीजिए इससे 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 बेनिफिट क्या है सेव करने से आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड रहेगा आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट आ सकती है आपका कुछ भी चलो फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल फोन है वो टूट जाता है अब आपके पास पैसे नहीं है नया मोबाइल लेने के बट अगर आपने कुछ महीने से सेव करना शुरू किया है तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा जिससे आप एक नया मोबाइल फोन ले सकते हैं which is very important. If not mobile phone, there could be health issues, family related issues. So वो सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी सेविंग्स आपको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने में हेल्प करती हैं आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी हेल्प करती हैं एंड
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाती है ये सेविंग्स। तो ऐसा है कि 20% तो आप कीजिए, बट अगर आप और ज्यादा कर सकते हैं, आपका इतना स्पेंड नहीं है, देन दैट्स अ लॉट बेटर एज वेल। When you say 50, 30 and 20, so like अगर सपोज दैट 20% हम मैंडेटरी रखते हैं अपने सेविंग्स के लिए, हम्म। ठीक, एंड समटाइम्स हैपेंस कि लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मेरे साथ भी ऐसा होता है, मंथ एंड आते आते ना कैश क्रंच होने लग जाता है, देन व्हाट टू डू दैट टाइम? ट्राई की वो 80 रुपीज ही आप पूरे महीने में उसको बजट करके स्पेंड कीजिए। आपको पता होता है मंथ के स्टार्टिंग में, प्रीवियस मंथ में आपका कितना स्पेंड हुआ। वो जो 30% आपका लेजर एक्टिविटीज है, आप ट्राई कीजिए उसमें थोड़ा सा कम स्पेंड कीजिए, ताकि मंथ एंड में आपको वो करना है। बिकॉज वो 20% की सेविंग्स आप नेक्स्ट मंथ में लेके जाएंगे, वो 20 + 20 40 हो जाएगा, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म के होराइजन में वो कैसे हेल्प करता है। या, ओके। सो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे बेसिक सेविंग्स कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे कर सकते हैं। सो कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बताता हूँ। जैसे अभी मैंने अनुश्री के क्वेश्चन पे बताया कि 20 आधा अगर आप इस महीने स्पेंड करेंगे, नेक्स्ट मंथ फिर आप 20 स्पेंड करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो विद इन 5 मंथ्स आपका वो 20 20 करके वो 100 रुपीज वापस आ गया आपके पास, जो आपके पास फर्स्ट मंथ में था। तो 6 मंथ में आपके पास 100 + 100 200 हो गए, जो आप काफी और चीजों के लिए स्पेंड कर सकते हैं, या यूज कर सकते हैं, या उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स ही लॉन्ग टर्म में आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म सेविंग्स बनती हैं, जिससे आप काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके समथिंग लाइक अ होम परचेजिंग में काम आ सकती हैं लॉन्ग टर्म। आपको एजुकेशनल लोन नहीं लेना पड़ सकता है ऐसे। आपको एक स्टडी अब्रॉड में करना है कुछ, या फिर आपको कोई अच्छा कोर्स करना है अच्छे कॉलेज से। सो उन चीजों में ये सारी सेविंग्स काम आती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट मैटर्स। जितना जल्दी आप सेव करना स्टार्ट करोगे, उतना ज्यादा और उतना ज्यादा बचा पाओगे। अगर आप 20 21 22 की एज से सेव करना या इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, या फिर आप 35 36 से स्टार्ट करते हैं, एट द एज ऑफ 40 45 50, इवन दो आप 20 21 हो, आपको शायद वो समझ ना आए कि 50 की एज में वो कैसा रहेगा। बट वेन यू रीच 40 45 50, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अगर उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता तो आज वो उनके पास कितना फंड्स होता। अगर उन्होंने नहीं किया, अगर आप आज करते हैं, तो आज आफ्टर 20 25 ईयर्स आपके पास कितना फंड होगा। और ऐसा नहीं है कि यू नीड टू स्टार्ट विद 50,000 10,000 5,000। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 500 और 1,000 रुपीज पर मंथ सेविंग्स एज वेल। अब ये सेविंग कहाँ करनी है, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा डाल के रख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स में कर सकते हैं। सो रिकरिंग डिपॉजिट क्या है? शायद आपको सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में पता होगा। रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या होती है? रिकरिंग डिपॉजिट्स होती हैं जब आप थोड़ा थोड़ा पैसा एट पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, से फॉर 1 ईयर और 2 ईयर पीरियड। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द डे यू इन्वेस्ट वहां से स्टार्ट होता है। आपने 1,000 इस महीने किया, 1,000 नेक्स्ट महीने किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फिक्स मिलेगा। ऐसे फिक्स डिपॉजिट्स में मिलता है। बट फिक्स डिपॉजिट में ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग में ही पैसा सारा का सारा डालना पड़ता है, बट रिकरिंग डिपॉजिट में आप थोड़ा 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 करके डालते रहते हैं, जिसमें आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि आप जितना जल्दी और जितना सिंपलेस्ट वे में इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा लॉन्ग टर्म में। एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज, और अनुश्री इफ यू वांट। Yeah. So like recurring deposits, like हम्म। बोलने में समझ में आता है कि अच्छा ये होता है, but what exactly, what are the plans available right now? You want to suggest something, because savings accounts का there's a like account खोल लिया, उसके बाद हर क्वार्टर में इंटरेस्ट आता रहेगा। फिक्स हम्म। डिपॉजिट लॉन्ग टर्म हो गया, 1 साल का, हम्म। 2 साल का, यू हैव टू। बट इस रिकरिंग डिपॉजिट एंड इसका क्या कोई लॉक इन पीरियड भी होता है? देयर समथिंग लाइक दैट? सो मोस्टली दीज आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। जैसे फिक्स डिपॉजिट्स यू कैन टेक वाया बैंक्स, ये भी बैंक की एक स्कीम है, जिसमें लाइक आई सेड कि जैसे फिक्स डिपॉजिट में आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया आज 10,000 रुपीज,
तो 1 साल के बाद आपको 6% या 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस करेंगे। सेम रिकरिंग डिपॉजिट में वो क्या बोलते हैं बैंक्स कि आप 10,000 रुपये आज मत दीजिए, आप 10,000 रुपये 10 महीने करके 1,000 रुपये हर महीने दीजिए मुझे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जब भी आप पैसे डालेंगे उससे जो सेविंग्स अकाउंट में 3% इंटरेस्ट मिलता है वो नहीं मिलेगा आपको, फिक्स डिपॉजिट वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा, 6% 7%। सो आपको फर्स्ट डे सारा पैसा डालने की जरूरत नहीं है, आपको हर महीने थोड़ा 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 पैसा डालने की जरूरत है। एंड ऑफ द डे आपको सेविंग अकाउंट में अगर आप डालेंगे और रिकरिंग डिपॉजिट में डालेंगे उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और ये सारी बैंक्स की स्कीम्स होती All right. Thank you, Yatin. Yeah. है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक की म्यूचुअल फंड्स और सेविंग्स फिक्स डिपॉजिट्स में क्या डिफरेंस है, बिकॉज बोथ आर वेरी सेफ। अगर आप अच्छी स्कीम्स में और बड़ी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, एंड देन फिक्स डिपॉजिट्स आर बैक बाय सम आर बैक बाय आरबीआई एफडीएलजी पॉलिसी, और सम आर बेसिकली लो रिस्क होता है फिक्स डिपॉजिट में, बिकॉज दोज आर बैक बाय बैंक्स। सो unless and until a bank goes down, those are more or less safe, and up to 5 lakh rupees, तो वो it is secured by the RBI. So mutual funds is sometimes high risk, sometimes low risk, depending on the scheme जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो। सो म्यूचुअल फंड्स क्या है, आप सिंपल क्वेश्चन पूछे तो। सो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो फंड मैनेजर्स विद डिफरेंट स्टॉक्स, डेट स्कीम्स, गोल्ड बॉन्ड्स का मिक्स करके एक स्कीम बनाते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होता है। कुछ इक्विटी स्कीम्स होती हैं, कुछ डेट स्कीम्स होती है, कुछ मिक्स स्कीम्स भी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इक्विटी स्कीम्स में जैसे फॉर एक फंड मैनेजर ने 50 या 60 या 70 शेयर्स का एक बास्केट बनाया, एंड देन वो थोड़ा थोड़ा एलोकेशन करके उसमें कर लिए। उसमें आपको अलग अलग 50-60 शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उस पर्टिकुलर स्कीम में करना है। एंड दोज आर बैक्ड बाय और सपोर्टेड बाय दीज फंड मैनेजर जो काफी एक्सपीरियंस होते हैं। तो उतना आप अगर इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, बिकॉज आप आजकल आई थिंक सभी ने भी काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। पहले एसएमएसेस आते थे, आपको कोई भी ऐसी टिप दे देता था आप ये स्टॉक ले लीजिए, एंड देन काफी लोगों का उसमें काफी लॉस होता है। बट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इवन दो रिस्क भी थोड़ा रहता है अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स लेते हैं, बट एक तरीके से वो सिक्योर्ड होती हैं बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अगर कोई 50 शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक या दो कंपनी में उसको लॉस हो जाए, बट रिमेनिंग कंपनीज विल गो ऑन फॉर एवर। तो देयर मे बी चांसेस कि रिटर्न कम हो, बट पूरा पैसा लॉस होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट, कुछ लार्ज कैप्स के होते हैं, कुछ मिड कैप्स के होते हैं, कुछ स्मॉल कैप्स के होते हैं। अब ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप क्या होता है? अब लार्ज कैप वो कंपनीज होती हैं जो मतलब आप और मैं शायद सब जानते हैं, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। तो ये सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये फॉल करते हैं लार्ज कैप स्कीम्स के अंडर। अब मिड कैप्स जो इनसे थोड़ी छोटी कंपनी होती हैं, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, राइट, बाटा हो गया, इवन दो काफी बड़े नाम है ये, बट मिड कैप बिकॉज उनका वो इतने बड़े नहीं है कि वो रिलायंस हो या एसबीआई हो या एक्सिस बैंक हो, बट आप जानते हैं। एंड देन अब इनमें रिटर्न भी वेरी करते हैं। जो लार्ज कैप कंपनी होगी वो ऑलरेडी बहुत बड़ी है, वो और कितना बड़ा हो पाएगी उस पर लिमिट होती है हमेशा। 20% ग्रो कर पाएगी, 25% ग्रो कर पाएगी। अब मिड कैप कंपनी होती हैं जो, इनमें पोटेंशियल ज्यादा होता है ग्रो करने का, तो इनमें अकॉर्डिंगली फिर रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। एंड थर्ड होती है स्मॉल कैप कंपनीज, जिनमें जो बहुत छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, जिनके बारे में शायद आप जानते भी नहीं होंगे, बट छोटे लेवल पे वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वहां पे रिस्क बहुत होता है रिटर्न आने का, और कंपनी के बैंकरप्ट होने का भी रिस्क रहता है। तो इट इज एडवाइस कि आप व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, आप
हमेशा स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट ना करें अनलेस एंड अनटिल आपको काफी अच्छी नॉलेज है उसके बारे में, एंड मिड कैप्स और लार्ज कैप्स में ही इन्वेस्ट करें। व्हेन यू स्टार्ट एज ए स्टूडेंट, आपके लिए एस आई पीज इज समथिंग की जहाँ पे आपको मंथली 500 और 1000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपफ्रंट 50,000 या 70,000 80,000 इन्वेस्ट नहीं करना है, आप मंथली 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं एक म्यूचुअल फंड की स्कीम में। एंड व्हेन यू स्टार्ट, आप लार्ज कैप से ही स्टार्ट कीजिए ताकि थोड़ा थोड़ा करके आपका मनी ग्रो हो। एंड व्हेन आफ्टर 1 2 3 years, जब आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, देन गो टू मिड कैप्स और मिक्स टाइप ऑफ स्कीम्स। अब जैसे गोल्ड से रिलेटेड अलग स्कीम होती है म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें वो सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करती है सिक्योरिटीज, उसमें अलग होते हैं। सो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में व्हेन यू स्टार्ट अर्ली एंड थ्रू एस आई पी मोड, जिसमें आप मंथली थोड़ा 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 कर रहे हैं इन्वेस्ट, आफ्टर 5 7 8 years, इनमें रिटर्न्स रेंजेस बिटवीन 10 to 25%। अलग अलग स्कीम में लार्ज कैप में कम होगा, मिड कैप में थोड़ा ज्यादा होगा, स्मॉल कैप में थोड़ा सा और ज्यादा होगा। बट इट्स एडवाइस कि आप लार्ज कैप में कीजिए, बिकॉज ब्लू चिप कंपनीज में, बिकॉज कभी ना कभी जब भी मार्केट डाउनफॉल आती है तो लार्ज कैप्स हमेशा मार्केट सपोर्ट करती हैं और स्मॉल कैप्स हमेशा सबसे ज्यादा फॉल करते हैं। सो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने तो मिड कैप में किया था इन्वेस्ट, बट वो 5,000 रुपीज आज 3,000 रुपीज के, मेरा तो लॉस हो गया। सो एंड व्हेन यू स्टार्ट एन एस आई पी, it's always advised to keep it continued for at least 5 to 10 years, बिकॉज तभी आपको वो अच्छा रिटर्न देता है। एंड ये हमेशा आपको फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न देता है। एंड देन फिक्स डिपॉजिट्स हमने शायद हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि बैंक से बैक्ड होती हैं, सम आर सिक्योर्ड बाय, एट अ पर्टिकुलर अमाउंट इज सिक्योर्ड बाय द आरबीआई एज वेल। सो उसमें रिस्क बहुत कम रहता है, एंड देन अकॉर्डिंगली फिर रिटर्न भी आपको 5 to 6 to 7% ही देते हैं बैंक्स। और इसमें आप एक पर्टिकुलर टेन्योर तक ही, टेन्योर का भी इसमें डिफर करता है, बिकॉज अगर आप 5 years की एफडी लेते हैं, देन ब्रेक करने में उसको कई बार इश्यूज आते हैं और बैंक ब्रेक भी करता है तो उसमें पर्टिकुलर चार्ज लगा देता है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वेन एवर रिक्वायर्ड आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। एंड देन कमिंग ऑन टू, अब इसमें म्यूचुअल फंड में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स होती हैं। देयर इज वन पर्टिकुलर स्कीम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहते हैं, जैसे ईएलएसएस, विच इज बेसिकली टैक्स फ्री। अभी तो स्टूडेंट है, टैक्स का कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर आप म्यूचुअल फंड इन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज ईएलएसएस। ईएलएसएस मोस्टली ऑलमोस्ट 95% स्कीम जो है अभी मार्केट में, ऑल आर लार्ज कैप्स बैक्ड शेयर्स। सो उसमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर आपको टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए, देन आपको इन बड़ी कंपनी में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप छोटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि मार्केट डाउनफॉल के टाइम पे इफ आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, देन आप ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एंड देन म्यूचुअल आपने एफडी करा दी, अब 3 साल तक अब वो एफडी वहीं रहेगी, उसमें आप कुछ मूव नहीं कर सकते। बट म्यूचुअल फंड्स में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपने आज इन्वेस्ट किया और आपने देखा कि आफ्टर 1 year आपने मंथली 500 रुपीज इन्वेस्ट किए और 1 साल बाद आपका वो 6,600 है, विच इज 10% ऑफ रिटर्न, बट आपने एक दूसरी स्कीम देखी लार्ज कैप की जो 20% रिटर्न दे रही है, तो आपके पास वो भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप स्कीम चेंज कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी एडेड बेनिफिट, जो आपके पास एफडी में नहीं है। बिकॉज एफडी रेट्स वेरी करते हैं, आपने आज एफडी करी, हो सकता है 6 महीने बाद एफडी के रेट्स बढ़ जाएं, देन अगर आप ब्रेक करके नई एफडी बनाएंगे तो उतना ही चार्ज लगा देते हैं। सो दिस इज ऑन हाउ आप कम रिस्क में अच्छा रिटर्न इन्वेस्ट अर्न कर सकते हैं, और व्हाट आर द वेज जहाँ पे आप कम रिस्क के साथ एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस हियर अनुश्री? या Yeah, so Yatin, we have two questions actually. Minnie is asking, sir, what is the ULIP plan in mutual fund? Is it same like mutual fund or it's different?
सो यूलिप्स क्या है? यूलिप्स इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स स्कीम विच इज बेसिकली मेड बाय इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनका बेनिफिट होता है, आपका नहीं होता। द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो आपको देते हैं रेंजेस बिटवीन 4 to 5%। दिस इज ऑन द रिटर्न। बट वो यूलिप होता क्या है? यूलिप इज अ कंबाइंड स्कीम जिसमें वो आपको लाइफ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं और आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी करके दे रहे हैं। उसकी वजह से उसका रिटर्न कम हो जाता है। बट आप हमेशा ये लेके चलिए कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो वो आपको एक बहुत कम प्राइस में एक अच्छे अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस आपको एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। बट बिकॉज यूलिप टैक्स फ्री है, जी क्या करते हैं बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, व्हाट दे डू इज वो उसको क्लब करके उसको टैक्स फ्री करके आपको सेल कर देते हैं। बट अगर आप चेक करें उसका 4 years 5 years 6 years का रिटर्न, वो बहुत लो है, मतलब 4 to 5%, समटाइम 3 to 3.5% एज वेल। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप ले रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हो गया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स हो गया, वो इन्वेस्टमेंट्स है। बिकॉज व्हेन दे सेल दिस टू यू वो आपको ये बोलते हैं कि यार ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बट ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इसमें सिर्फ और सिर्फ वो अर्न कर रहे हैं और बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज अर्न कर रही हैं। अगर आप सेम अमाउंट से समथिंग लाइक 50,000 रुपीज आप यूलिप में डालते हैं 5 years के लिए, आपको वो आफ्टर 5 years नॉट मोर देन 3 lakhs, इससे ज्यादा ऊपर नहीं करके देंगे। बट यही अगर 50,000 आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं 1 CR की टर्म लाइफ इंश्योरेंस में, तो 50,000 रुपीज 5 years का वो हो गया। इन द रिमेनिंग 2 लाख अगर आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, वो 5 years में हमेशा आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न देगी देन दीज यूलिप्स। सो यूलिप्स इज काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिटवीन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें वो अर्न करते हैं और आपको वो नहीं अर्न करने देते हैं। सो अगर कोई आपको म्यूचुअल फंड बोल के यूलिप दे रहा है, देन दे आर नॉट It's a scam. नॉट अ स्कैम, बट इट इज अ स्कीम। बट उसको बहुत मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको गलत तरीके से शोकेस किया जाता है, जिसमें वो आपको बताते हैं कि आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस भी कवर हो जाएगा और आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। कोई भी स्कीम जिसमें लाइफ इंश्योरेंस साथ में होता है उसमें आप कभी अर्न नहीं। ऑलवेज कीप योर इंश्योरेंस सेपरेट एंड योर इन्वेस्टमेंट सेपरेट। All right. So we have one more question from Minnie. In mutual fund, if somebody do SIP, it is beneficial, or one term payment is beneficial, because if you will pay at one time, you will get more units. So we will get more returns, right? Please give your suggestions. Thanks. सो एस आई पीज में इट्स सजेस्टेड कि आप हमेशा एस आई पी कंटिन्यू रखें। बिकॉज अगर आपने आज इन्वेस्ट किया वे निफ्टी इज 22,000, द इंडेक्स इज एट 22,000, टुमारो इट कम्स एट 20,000, और आपने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, यू आर डाउन बाय 10%। बट वही पैसा अगर आपने से वो 6 महीने लग गए मार्केट को 22,000 या 20,000 आने में। अब अगर आपने वही इफ यू इन्वेस्टेड इनिशियली 10,000 रुपीज, तो वो 10,000 आज 9,000 होंगे अप फ्रंट में। बट उसी एस आई पी में अगर एस आई पी मॉडल में अगर आपने किया होगा, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे वो मार्केट नीचे आ रही होगी आपने उस प्राइस पे इन्वेस्ट किया होगा। सो इवन दो आपके पास आज की डेट में वन टाइम आपको मिल जाएंगी यूनिट्स, और से मार्केट 22 से 24 चला जाता है, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा बिकॉज आपने वन टाइम किया था। बट दीज थिंग्स आर नेवर श्योर। सो इट्स ऑलवेज एडवाइस कि आप एस आई पी कंटिन्यू रखिए, स्टार्ट कीजिए और हमेशा रखिए, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। बिकॉज जब वो एवरेज आउट होता है, देन यू गेट अ लॉट मेनी यूनिट्स देन व्हेन यू डू अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एंड यस, इफ यू हैव enough funds where you want to invest, तो आप वन टाइम भी कर सकते हैं ऐसे ही इसका। Okay, thank you, Yatin. Yeah, we can move to the next slide. नाउ अब डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या होने चाहिए या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या होने चाहिए एक स्टूडेंट के लिए। तो समथिंग जो विद इन 1 year आपका अचीव हो जाए, 2,000 शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स।
अब मान लीजिए आपने एक तरीके से आपने अपना नेक्स्ट बर्थडे का प्लानिंग कर रखा है। आपने अपने 10 फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी की ट्रीट देनी है। तो थोड़ा 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 करके आप इन्वेस्ट सेव करना स्टार्ट करेंगे। सो दोज आर काइंड ऑफ योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स। आपने सोचा है कि आप आफ्टर 6 मंथ्स एक न्यू मोबाइल परचेज करेंगे या न्यू लैपटॉप परचेज करेंगे। उसके लिए आप हमेशा थोड़ा 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 सेव कर रहे हैं। या आपने कोई ट्रेनिंग कोर्स करना है, या आपने कुछ अलग से सेव करके रखना है वेकेशन के लिए, सेव करना है। तो आप हमेशा वो थोड़ा 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 करके स्टार्ट कर देते हैं एक दिन से। बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि आप हमेशा से वो फंड बना के रखिए। हमेशा इन सेव कीजिए, ताकि अगर आपको एक न्यू मोबाइल लेना है, या एक बर्थडे पार्टी देनी है फ्रेंड्स को, या एक वेकेशन पे जाना है, आप उस फंड में से थोड़ा सा हमेशा यूज कर लीजिए। एंड नेवर एग्जॉस्ट दैट फंड। बिकॉज अगर आप उसको हमेशा रखेंगे अपने पास फंड, तो वो नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म और आपको लॉन्ग टर्म में भी काफी असिस्ट करेगा। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या रहने चाहिए आपके? टिपिकली 3 ईयर से ऊपर जितने भी आप गोल्स रखते हैं, दोज आर कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। आप अभी जॉब कर रहे हैं, बट यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसके लिए आपको अभी से सोचना पड़ेगा। इफ यू आर वर्किंग इन अ जॉब, और आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, सो वो फंड्स कैसे आएंगे? उसके लिए यू नीड टू स्टार्ट नाउ। ऐसा नहीं होता कि आप 500 रुपीज सेव कर रहे हैं या 1000 रुपीज सेव कर रहे हैं तो वो कम है। एनी इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म अगर आप उसको मोर देन 3 ईयर्स तक रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। आपको आज के 500 रुपीज 3 साल बाद वो 50,000 रुपीज भी हो सकते हैं, 15,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज एडवाइस कि आप शॉर्ट टर्म भी कीजिए, एंड ट्राई कि वो लॉन्ग टर्म तक उसको सस्टेन करें। अब a lot of people think कि थोड़ा थोड़ा थोड़ा, because people mostly start saving when they start earning. For a student, they don't get much money, so it's always advised कि आप जितना हो सके लेजर एक्टिविटीज पे कम स्पेंड करें, so that you build a small portfolio of maybe bank savings or mutual funds or fixed deposits, so that you never know कि tomorrow what might be the situation and what requirement there might be. सो वो लॉन्ग टर्म में भी आपको हेल्प कर सकता है, शॉर्ट टर्म हिकअप्स में भी हेल्प कर सकता है आपको। से समथिंग लाइक यू वांट टू गेट योर ओन होम। अभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए, बाद में तो बहुत सारा पैसा चाहिए। बट यही छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पैसा आपको बाद में बहुत हेल्प कर सकता है। बिकॉज दिस इज वॉट कंपाउंडिंग इज। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करेंगे, वो हमेशा बाद में जाके बड़ा दिखेगा आपको। अभी वो फील नहीं करेगा, बट बाद में जाके वो हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपको आज आप एनविजन नहीं कर पा रहे हैं, वो आफ्टर 3, 5, 7 ईयर्स आप एनविजन कर पाएंगे कि यस, इट वॉज अ राइट डिसीजन टू स्टार्ट अर्ली। एंड लाइक आई मेंशन कि यू नीड टू बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। आपके पास से 5,000 रुपीज है, इट डजेंट सेविंग मी डजेंट मीन कि आप 5,000 पूरे के पूरे एक बर्थडे पार्टी में स्पेंड कर दें। उसमें भी बजट कीजिए कि 5 में से नहीं, मुझे 2,500 या 3,000 स्पेंड करने हैं, रिमेनिंग आई कीप। एंड देन उसमें फिर से ऐड करते जाएंगे। देन बेसिक इज गोल सेटिंग प्रोसेस। आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए कि आपको एक्चुअली करना क्या है with that particular money that you will save, whether you have short term goals, long term goals. Because अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स में ही लगे रहे, तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स कभी अचीव नहीं होंगे। सो यू ऑलरेडी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो शॉर्ट टर्म गोल्स आप अचीव कर पाओ, एंड देन यू हैव एनफ मनी टू कीप दैट फॉर द लॉन्ग टर्म। बिकॉज हर पर्सन के अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सम पीपल माइट नॉट वांट अ वेकेशन फंड, बिकॉज वो पेरेंट्स फंड कर देंगे। आपको गैजेट चाहिए, आपके पेरेंट्स दे देंगे। आपको कोई कोर्सेज करने हैं एजुकेशनल, उसके लिए आपको आपके पेरेंट्स फंड कर देंगे। बर्थडे पार्टी की ट्रीट वो दे देंगे। सो आपके पास हमेशा इनफ फंड्स होने चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म में रिक्वायर्ड नहीं है, तो कीप देम फॉर द लॉन्ग टर्म। इट डजेंट मीन कि अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको स्पेंड ही करना।
और हर किसी का एक पर्सनलाइजेशन, हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सम पीपल का सिर्फ शॉर्ट टर्म ही होता है बिकॉज उनके पास दे जस्ट हैव एनफ मनी कि वो उतना ही स्पेंड कर पाए. इट्स ऑल अबाउट बजटिंग. आपको यू ऑलवेज नो कि आपके पास कितना पैसा है एंड हाउ डू यू वांट टू स्पेंड इट. दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट. एनी क्वेश्चंस है अनुश्री? Yeah, so we have two questions right now. Arvind is asking stock में पैसा लगाना रिस्की है या सही, एंड कौन से फैक्टर माइंड में रखने चाहिए when you put money in stocks? I think he's फर्स्ट ऑफ talking about the stock markets. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट बिकॉज आपको न्यूज में सुनने में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट काफी ऊपर है, काफी लोग पैसे बना रहे हैं, डजेंट मीन आपको भी इन्वेस्ट करना. सबसे पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट है क्या. स्टॉक मार्केट में भी देर आर वेज वेयर पीपल आर लूजिंग मनी. स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो अब कभी भी शॉर्ट टर्म मत सोचिए कि मैं 2 दिन में अपने 10,000 को 1 लाख कर लूँ. बिकॉज 10,000 99.9% ऑफ टाइम्स जीरो होंगे. और ये काफी लोग अ, मतलब in terms of a lot of people that do these things, there are a lot of people जो काफी लोग हैं जो एक तरीके से एक स्कीम रन करते हैं कि ये देखिए स्क्रीनशॉट, मैंने 10,000 से 50,000 बना लिए 2 दिन में. आइए आप मैं जो बोलूंगा वो स्टॉक्स लीजिए, आपके भी ऐसे पैसे बनेंगे. तो काफी, दिस इज व्हाट यू कैन कॉल अ स्कैम, अनुश्री. These are people who are actually running these scams where they are Yes. enticing you to invest money, not just in stocks but in their courses as well. काफी सारे कोर्स रन करते हैं, काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स रन करते हैं ये लोग, काफी सारे टेलीग्राम के ग्रुप्स रन करते हैं, फेसबुक कम्युनिटीज हैं. I see very frequently there are crash courses coming for these type of एग्जैक्टली exactly. things. अब आप सोच के देखिए, अगर वो इंसान खुद स्टॉक मार्केट से पैसा अर्न कर रहा होगा, क्या उसको जरूरत है क्रैश कोर्सेज करने की? नहीं है उसको जरूरत. True. बट मोस्टली वो लोग ये बताते हैं कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं. नहीं, वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो अपना पैसा बना रहे हैं बस. सो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद लॉन्ग टर्म कंपनीज. से समथिंग लाइक अरविंद क्वेश्चन वाज कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें. स्टार्ट रीडिंग मनी कंट्रोल, मिंट. एंड अभी 1 फरवरी को बजट भी आ रहा है, सो बजट के बारे में पढ़िए, विच इज द सेक्टर्स गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन. बिकॉज द सेक्टर गवर्नमेंट फोकसेज ऑन, पूरे 1 ईयर का साइकिल रहता है एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट बजट. एंड गवर्नमेंट कीप्स ऑन, दे हैव अ पर्टिकुलर बजट फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्टर, वो वहीं पे इन्वेस्ट करती है. So last year there was budget specifically for drone companies. So if you pick up the drone companies last year, so they have, even good companies, they have turned 3x, 4x within 1 year time frame. And this is long-term investing, what we say. So start following uh, these financial uh, companies or financial websites, Money Control, Live Mint. When the budget comes, start reading which sectors the government is focusing on. Uh, and there are certain sectors which the government wants to privatize because government को समझ आ जाता है कि हम government, the way government works and the way private entities work is a little bit different. और private में there's a better return that they can get. तो अरविंद, go back, read the last year's budget. इस बार का बजट आप पढ़िए. The last 3 years budget, the government is uh, focusing on infrastructure. So इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी सब सेक्टर्स हैं, समथिंग लाइक पाइप्स, स्टील, सीमेंट, सो इस टाइप की कंपनीज में आप फोकस करिए. बिकॉज वो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए वही फोकस होगा गवर्नमेंट का. एंड देन बिकॉज गवर्नमेंट का वही फोकस है, प्राइवेट प्लेयर्स का भी मोस्टली वही फोकस जाता है. सो आपके बजट पे कीप अ फोकस एंड आइडेंटिफाई दो सेक्टर्स. और उस सेक्टर का द बेस्ट कंपनी जो है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, छोटी कंपनी में मत कीजिए बिकॉज दोज आर द रिस्की बेट्स. Okay, so I think we have one more question about the same topic. It's by Aditya. He's asking, what are the factors that I have to keep in mind while doing the intraday trading?
as a working professional. And I think it is not a working professional thing, because हम लोग भी क्या करते थे ना स्कूल में, जब पढ़ाते थे ना बिजनेस में इंट्राडे ट्रेडिंग एंड ये सब आता पोर्टफोलियो था। मैनेजमेंट। हाँ, पोर्टफोलियो मैनेज करना, तो हम लोग भी मतलब बना लेते थे कि अरे करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। सो दीज आर लाइक वेरी कॉमन थिंग्स, बहुत एक्साइट भी करते थे पढ़ते टाइम। तो लाइक इज इट actually a good thing, or नो, what are the factors one should consider while doing डोंट such इन्वेस्ट, activities? डोंट इन्वेस्ट। इंट्राडे इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज मोर ऑफ अ गैम्बलिंग काइंड ऑफ अ थिंग, वेयर आप जस्ट बैठ के स्क्रीन देखते रहते हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, और अब बस किसी के, अब इधर योर इंट्यूशन और किसी ने आपको कोई टिप दे दी तो उसके बेस पे आप कर रहे हैं। अवॉइड अवॉइड दीज काइंड ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस, कॉल्स, पुट्स, सब अवॉइड कीजिए। ऑलवेज प्रेफर शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 3 to 6 months का शॉर्ट टर्म, मोर देन 1 year का लॉन्ग टर्म आप लेके चलिए, एंड not focus on these short term investment types. Thanks, Yatin, Yeah. to burst the bubble of everyone and also mine. Yeah, we can go ahead for the next slide. Yeah. Thank you. So now we'll talk how to create a financial plan. So budgeting क्या होती है, उसका relevance क्या है? So budgeting is something where you list out आप कहाँ कहाँ से आपका income आ रहा है और कहाँ कहाँ आप spend करेंगे। उससे क्या होता है? So basically आप decide कर सकते हैं कि आप कितना सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आपका actual expenses ही 100 रुपीज है, तो आप तो सेव ही नहीं कर पाएंगे अगर आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं। So always think about ways either you reduce your expense or increase your income, because सेविंग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज रिमेनिंग आपका हमेशा एक्सपेंसेस में जाएगा। एंड मे बी इफ यू आर नॉट सेविंग, टुमारो आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब होती है, या लाइक एन एग्जांपल आई शेयर्ड कि आपका मोबाइल फोन खराब हो गया, नए मोबाइल फोन लेने के लिए आपके पास है ही नहीं पैसे, सो व्हाट विल यू डू इन दैट केस? तो ऑलवेज कीप सम सेविंग्स, एंड बजट जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आपका कितना इनकम है, कितना एक्सपेंस है, कितना आप सेव कर पाए। या सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर विल टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट अ बजट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई मेंशन कि आप क्वांटिफाई कीजिए कि आपके इनकम क्या है, आपके और किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। से समवन फॉर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए पॉकेट मनी हो गया, या वो कुछ इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहां से जो आप उनको स्टाइपेंड मिलता है वो हो गया। एंड ऑलवेज थिंक ऑफ कि आप और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं मनी अर्न करने के लिए। जस्ट बिकॉज आपको स्टॉक मार्केट किसी ने टिप दी, इट्स नॉट एडवाइस कि आप अपना बचा हुआ सेविंग भी वहां डाल दें एंड देन एंड अप विद नथिंग, बिकॉज वंस यू स्टार्ट सेविंग आपको 6 महीने बाद पता चलेगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सेव, और वो जीरो करना बहुत ईजी है, लिटरली बहुत ईजी है। सो आइडेंटिफाई दैट व्हाट योर डिफरेंट इनकम सोर्सेज आर। आप अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखिए एक जगह कि ये एक्सपेंसेस मेरे को हर महीने होते ही हैं। उसके बाद उसमें कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस मान लो आपको ग्रोसरीज मंथली लेनी ही है, को रेंट मंथली देना ही है, तो दीज आर कंसिडर्ड मंथली फिक्स एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस की आपको मूवी देखने जाना है, ठीक है, महीने में आपने एक मूवी देख लिया, दो मूवी देख ली, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। वो जो आप मूवी नहीं देखेंगे वो सेव हो जाएगा। रादर आप मनी कंट्रोल पे, लाइव मिंट पे कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड पे आर्टिकल पढ़ लीजिए, ताकि आपको फाइनेंशियल नॉलेज और आप एक्चुअली फाइनेंशियली साउंड रहें कि एक्चुअली फाइनेंशियल वर्ल्ड में चल क्या रहा है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सेविंग्स आप हमेशा एलोकेट कीजिए सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए। इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा रहना चाहिए। एंड इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की फॉर अ स्टूडेंट हु इज अर्निंग अ स्टाइपेंड, at least 2x of their monthly stipend should be their emergency fund, because tomorrow that money might not come, and then you will have to survive, right? तो आप हमेशा अपने लेजर्स कम कर सकते हैं, अपनी नीड्स के एक्सपेंसेस कम नहीं कर सकते। मेक श्योर यू हैव 2x ऑफ दैट, एंड दैट कैन हेल्प यू सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 4 to 6 months। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। हमेशा अवॉइड कीजिए आप डेट लेना।
अगर आपको स्टूडेंट रिलेटेड डेट लेना भी है, ऑलवेज ट्राई टू अर्न एंड क्लोज इट, बिकॉज द मोर यू कीप, द मोर यू विल बी कीप ऑन, आप उस लूप में ही फंसते जाएंगे, वेर वो डेट हमेशा रहेगा, आपको हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि आपको डेट वापस करना है। और हमेशा रेगुलरली आप एवरी 6 मंथ्स, एवरी 12 मंथ्स अपने बजट्स रिव्यू कीजिए कि मैंने ये बनाया था, इतना एक्सपेंसेस का बजट, और अब मेरा इतना एक्चुअल स्पेंड हुआ है। बिकॉज जब तक आप वो रिव्यू नहीं करेंगे, आप नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 12 मंथ्स में आप नेक्स्ट साइकिल में बजट नहीं बना पाएंगे। तो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एनी क्वेश्चंस हियर अनुश्री? No, not yet. ओके, We कूल। can go ahead. या, हाँ, तो फ्यूचर स्टडीज के लिए स्टूडेंट्स कैसे बजट मैनेज करें? अपने गोल सेट कीजिए, आइडेंटिफाई इनकम लाइक क्लास स्लाइड वाला मोस्टली यहाँ पे है, क्रिएट बजट क्रिएट कीजिए, फंड सेविंग में डालिए। And सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप अगर लोन ले रहे हैं तो कहाँ से लोन ले रहे हैं, किस तरीके का लोन ले रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड विल टॉक अबाउट दैट, बट दिस इज मोर और लेस जर्नी ऑफ हाउ टू आइडेंटिफाई एंड क्रिएट योर बजट, सेट योर एजुकेशनल गोल्स, एंड व्हेन यू आर अर्निंग, तो वो whether you have to take a loan for your studies, और वो स्कॉलरशिप से आएगा या पार्ट टाइम आपको काम करके वो करना पड़ेगा, और दोनों में बैलेंस आउट कैसे करना। दैट्स मोर लाइक मोर ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन। Yeah, then I have a question. या, You say loan ले सकते हैं. So what you advise? A student should take loan in his name or by the name of their parents. The parents should take the loan. If a student is planning to study abroad, so most of the cases में ऐसा होता है कि student कुछ अपने नाम पे लोन ले लेते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहीं नहीं हम अपना रिबेट ले लेंगे, हमें टैक्स में बेनिफिशियल होगा, तो वी लेट अस टेक द लोन. So like who should ideally take the loan in whose name? What you सो would say? स्टडी अब्रॉड, इफ अ स्टूडेंट इज गोइंग, देन मोस्टली यूजी या पीजी होगा, एंड देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू डू नॉट हैव अ क्रेडिट लिमिट, नॉट अ क्रेडिट लिमिट बट अ क्रेडिट स्कोर। बट वो स्कोर starts building up when you start filing ITRs, you start taking small loans, वो वहां से build होता है आपका credit score. But these students, when you are just past your 12th, credit score वहां पे उस time पे available नहीं होता है, and then banks won't actually give you a loan. But if you have a credit score, and a bank or a financial institution is willingly ready to give you that particular loan, it's advised to take that loan in your name. In this slide we'll talk about credit and debt, लोन कहाँ से लेना चाहिए, किस तरीके का लोन्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ क्रेडिट, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, जब तक आपने इनमें से कुछ लिया नहीं होगा तब तक आपका क्रेडिट स्कोर नहीं जनरेट होगा, और आपका क्रेडिट स्कोर नहीं जनरेट होगा तो कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने लग जाओ, वो लोन लेने लग जाओ ताकि आपका क्रेडिट स्कोर अवेलेबल हो जाए। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड डेट। अगर आप क्रेडिट कार्ड भी ले रहे हैं, ऑलवेज इंश्योर यू डू नॉट यूज मोर देन 30% ऑफ दैट लिमिट इन एनी मंथ। और क्रेडिट कार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास देयर इज अ कार्ड, फ्री मनी, यू कीप ऑन स्पेंडिंग, एंड टुमारो आपके पास यू डू नॉट हैव दैट द money to pay back the card company. So that's more important. Debit cards are more advisable for students, so that अगर बैंक में 5,000 है तो 5,000 का ही यूज करने देगा, नॉट दैट 50,000 क्रेडिट लिमिट क्रेडिट कार्ड में तो हमने 45 यूज कर दिए, वेंट ऑन अ वेकेशन, दो दोस्तों को भी ले गए, एंड देन आफ्टर 1 मंथ जब बिल आया, यू डू नॉट हैव द मनी टू पे, because that would affect your credit score, and then after you default, no bank will be willing to give you a loan. So I this, agree yeah, with this thing that I uh, used to do this thing. 50,000 का क्रेडिट लिमिट है, ठीक है अभी थोड़ी ना पे करना है, बाद में कर देंगे. बट यस आई एग्री दिस इज द वेरी रॉन्ग डिसीजन hmm, teenagers do take. right. So there's also a difference between good and bad debt. Bad debts आप over utilize करते हो कुछ भी, it's always bad. आप, what is good debt? आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर, that's a good debt, right? So there's always a differentiation. अगर आप
एक क्रेडिट कार्ड को भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो. You do not spend more than what you have. It's also considered a good debt, right? So bad debt आप आपने there's a lot of the last point on this slide. There's a lot of apps, a lot of companies out there which are offering you some form of debt. Initially, they will offer a low rate of interest, but because a lot of people लोगों को समझ नहीं आता कि how these interest rates work, so what happens is they take the loan at particular amount, and then they understand कि इस पे rate of interest कितना ज्यादा है, and then it becomes very very difficult to pay. So avoid taking any kind of loan from these particular apps. कॉल करेंगे आपको, मैडम लोन ले लीजिए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, but after you take that loan, you get stuck and you keep on paying those EMIs. That's a big loophole that's out there, and students specifically need to avoid that. अब कॉमन सोर्सेज क्या है डेट के स्टूडेंट्स के लिए? आप बैंक से लोन लीजिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लोन लीजिए, स्कॉलरशिप लोन्स होते हैं. वेयर स्कॉलरशिप लोन्स क्या होते हैं? यू हैव टू पे से 5 लाख रुपीज फॉर योर 3 ईयर ऑफ कॉलेज, एंड आपको 3 लाख की स्कॉलरशिप मिल गई. उस स्कॉलरशिप के बेसिस पे बैंक्स आपको इजीली लोन दे देते हैं रिमेनिंग 2 लाख का, because they understand that you are a bright student, that's why you have ended up with the scholarship, and they are और उसमें then not a lot of checks and other things जो नॉर्मल एजुकेशन लोन में वो लोग देते हैं. फैमिली लोन्स हो गए या पर्सनल लोन्स हो गए, आपके पेरेंट्स आपसे आप पेरेंट्स से लोन ले सकते हैं. इफ दे हैव द मनी, यू रिटर्न बैक आफ्टर यू स्टार्ट अर्निंग. क्राउड फंडिंग इज अ वे. सो ऑलवेज अवॉइड, जस्ट बिकॉज आपको बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के या बिना किसी XYZ डॉक्यूमेंट के कोई लोन दे रहा है, डजंट मीन कि आपको लेना ही है. बिकॉज व्हेन यू डिफॉल्ट ऑन दीज लोन्स, दे सेंड द रिकवरी एजेंट्स एंड they create a very bad scene. They send them to your home, they keep calling you. So those issues happen a lot, and it's always advised to avoid these apps. Any questions here, Anushi? Yeah, so we have actually one question. It's asking, is investing possible for students with a very little money? What would you recommend? Are mutual funds and SIP worth investing in small amounts as even a student? Yes, You it's always already advised to start early. You can start as small as 500 rupees per month. SIPs. Go for blue chip schemes. 500 रुपीज से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए. ओपन अ डीमैट अकाउंट एंड वॉइला, स्टार्ट. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. so okay. We have one more question. Is it worth investing in railways and infrastructure sector at this moment? I think that's a, like moreover a That investment. that's a very difficult question to answer, because the last 6 months they have those stocks have actually uh, run pretty much become 4x, 5x, 6x. So avoid at this moment. And once the budget comes in, you'll have more good sectors to invest in. Read, and then you'll understand where to invest and how to invest. Like Okay. I was Yeah. talking about, Next. yeah, like I was talking about how and where you can read and understand these financial uh, developments. Online platforms are there. You can go and get a small course done on personal finance, investing, understand what basics are. You have money control, CNBC, ET Money, Mint. You can go read and understand who's doing what are the latest development in the financial sector. So it's all about how much you want to do, how much you want to learn. There are investment platforms. Someone asked how much they can invest. Go to either of any of these apps, or through mutual fund online. Start investing, and after the 5 years, which is a long time for a student, but you'll start understanding and start learning. That's more important right now. So these are few tips for financial success. You need to set your clear financial goals. Create a realistic budget. Not just कि मेरे पास 100 रुपए है, मैं 80 स्पेंड कर दूंगा.
जस्ट बिकॉज मुझे बजट बनाना है, मेरे को तो 20 ही सेव करना है। नो, अंडरस्टैंड दैट अगर आपका एक्सपेंसिव 50 है तो वो 20 को 50 लेके जाइए, और 20 लॉन्ग टर्म में कीजिए, 30 शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। बट जस्ट बिकॉज आपके पास यू हैव द मनी डजंट मीन उसको स्पेंड ही करना। 50-30 रूल इज फॉर दोज पीपल हु हैव 100 रुपीज एंड आर देयर बजट से दैट 100 रुपीज ही स्पेंड होगा हमारा। उनके लिए है वो कि 20 आप किसी तरीके से सेव कीजिए। बट इफ यू कैन सेव मोर, that's more better. The more you save, the more long term and short term financial goals will be met. Emergency fund, always keep, invest early and consistently, रीड कीजिए, पढ़िए, जितना हो सके। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने से ही आपको समझ आएगा कि कैसे करते हैं। अवॉइड बैड डेट एट एनी कॉस्ट। डू नॉट जस्ट टेक मनी फ्रॉम एनीवन एट अ, कुछ भी प्रोमिस करके आपको अगर कोई पैसा दे रहा है, आप खुद एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए सोचिए कि कोई आपको ऐसा क्यों करेगा, ऐसा अपफ्रंट मनी क्यों देगा। बिकॉज उनका फायदा है उसमें, एंड दे लुक आउट फॉर इंडिविजुअल जिनको इस बात की समझ नहीं है। सो लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। जस्ट बिकॉज आप जॉब कर रहे हैं डजेंट मीन आपके पास दूसरा इनकम स्ट्रीम नहीं होना चाहिए। रिव्यू एंड एडजस्ट योर फाइनेंशियल प्लान, थोड़ा थोड़ा करके रिव्यू कीजिए, एडजस्ट कीजिए, पढ़िए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को अलग रखिए। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। ऑलवेज कीप प्लान फॉर योर रिटायरमेंट अर्ली। एक स्टूडेंट को बोलना थोड़ा ऑड लग रहा है, बट दिस इज व्हाट इट इज। बिकॉज अगर आप नहीं सोचेंगे आज से 30 साल बाद, तो then it will become an issue after 10 to 12 to 15 years when you would have nothing, uh, something like an emergency fund or a portfolio of sorts. Because ये 500 अगर आप करके इन्वेस्ट करते जाएंगे for next 10 years, you will see that might end up with becoming 1 lakh, 2 lakh or maybe 5 lakhs as well. अभी 500 है, बाद में बहुत बढ़ सकता है। अवॉइड इम्पल्सिव स्पेंडिंग। जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड बहुत लेविश पार्टी दे रहा है, आपको देने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड के पास आईफोन है, आपको लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड आपके लिए स्पेंड कर रहे हैं, आपको स्पेंड करने की जरूरत नहीं। ऑलवेज कीप योर एक्सपेंसेस एट द लोएस्ट एंड इंश्योर यू सेव मोर। स्टे डिसिप्लिन एंड पेशेंट। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा डिमेरिट होता है कि आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं from the people or your friends. So avoid that. कि just because the other person is not disciplined and patient, आप भी वैसा ही behave कर रहे हैं. Because this at the end will be your benefit and not the other person's. So this was it. Any questions that anyone has? More than happy to Uh, answer. no, Yatan, no, not now. We don't have any question. Okay, cool. So you can always reach out to uh, iDreamCareer for any questions that you have. You can scan the QR code and ask your queries on our app as well. So anything, So yeah. yeah, thank you, Yatin. Like literally, it was like a very insightful session. It was really engaging, and I hope our viewers will got their answers. If you have any questions related to managing your finances or maybe your career related questions, you can simply scan the QR code on your screen, and it will take you to our web app. There you will be able to see an ask me anything option where you can get all answers related to all your queries, and directly ask from expert counselors. So go ahead and explore. Don't forget to hit the subscribe button below to stay updated and never miss any update of our weekly career class and other insightful content. Thank you all for joining in. Thank you so much, Yatin. It was pleasure having you. Thank you, Anishri. Thank you for having me. Okay.